हम बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बैंकिंग सेक्टर में आज हमारी हड़ताल है, हमारे संगठन की हड़ताल है। हमारी अपने मांगे हैं, कुछ मांगे जो हैं उस केंद्रीय संगठन जो ट्रेड यूनियन संगठन है उनके साथ कॉमन मांगे, जैसे श्रम कानूनों के अंदर बदलाव जो है वो नहीं होना चाहिए, वो हमारी एक कॉमन मांग है। लेकिन बैंक स्पेसिफिक भी हमारी बहुत सी मांगे हैं। तो ये जो इंश्योरेंस और बैंक का जो इकट्ठे होकर जो ऐलान किए बैंक का, तो उसका इम्पैक्ट कल कुछ हो सकता है? इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जब लाखों लोग जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से और इंश्योरेंस सेक्टर से हड़ताल पर हैं तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जब उनका पेन डाउन स्ट्राइक है तो वो तो इम्पैक्ट होना वाजिब है। गवर्नमेंट और इट विल बी द बैंक अथॉरिटी। पार्डन? कौन सुनेगा? बीजेपी गवर्नमेंट सुनेगा, बैंक अथॉरिटी सुनेगा? देखिए, हम तो ये हड़ताल जो है सरकार के विरोध में है। बैंकों के उसके अंदर इश्यूज हैं हमारे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बैंक जो हैं वो राष्ट्रीय क्षेत्र अंदर आते हैं और बैंक के पास ही उनका आज तक मालिकाना हक है। तो जाहिर है कि मालिक तो उनकी बैंक ही है, बैंकों की जो है सरकार है, तो सरकार के विरोध में ज़्यादा है, ताकि वो बैंकों के प्रबंधन पे दबाव डाल करके जो हमारी मांगे हैं वो उसको जो है सुलझाने की कोशिश करें। तो आगे भी जारी रहेगा? आगे भी जारी रहेगा। आज के जो इसको देखते हुए फिर इसके बाद जो है समीक्षा बैठकें जो होंगी उसके अंदर ये तय किया जाएगा इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच। All of the Bharat Bandh. The impact is not Bharat Bandh, it's general strike. The impact will be told to you by our CITU President Dr. Hemlata, but the message is clear. That is, the Modi government's attack on the labouring classes of India has got a correct answer today with a huge success of the action supported by many political parties. The impact, it is all over country, from the BJP rule state and non-BJP rule state. This is against the central government's anti-worker policies. The details of the strike will be given to you by our trade union leader, Comrade Hemlata. Come, Hemlata, please come. Please speak about this strike. Yeah. So you mean to say that today's Bharat Bandh is totally successful? The call was not for a Bharat Bandh. The call was for a general strike, but it was supported by the organization, and also the left parties and several other parties have supported. So actually it has turned into Bandh in several states across the country. So the BJP rule state as well as the non-BJP rule state. Yes. And the massive participation, it is 25 crore. Yeah, it's a massive participation from all sectors of the workers, whether it is the organized sector workers in multinational corporations. Even it is in the transport sector also. In the transport sector also in several states. Bank, insurance, coal, there was total strike. Petroleum also there was good strike in public sector, and many multinational companies in different industrial clusters in the country, there was total strike, and scheme workers on strike. Unorganized sector massively participated in the demonstrations. What you are planning for tomorrow? No, today is the general strike. Then the central trade unions and the other federations, independent industrial sectoral federations, the joint platform of trade unions, which has given the call for the strike, they will sit again. And then they will review the strike and plan future action. Thank you very much. Thank you. पूंजीपतियों के दबाव में उसको स्क्रैप कर दिया और 4 कोड बनाए गए हैं। 4 कोडों को लागू करने की पूरी साजिश है, और अगर ये 4 कोड लागू होंगे तो देश का 60 करोड़ मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। 12 घंटे नौकरी होगी, 9,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी, ना कोई आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। अपने हाथों में लेकर 60 करोड़ वर्कर के हकों के ऊपर हमले हैं, इसको 10 मजदूर संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर इसको हम बर्दाश्त करेंगे तो अंग्रेजों का जमाना, उनसे आजादी लेकर हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां करी, जो फांसी के फंदे चूमे, तो हम ऐसे देश जिनको आप लोगों के हाथों में चुना गया वो हमारे हकों के ऊपर डाके डाले, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज दिल्ली में तो आप लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आए हैं, बावजूद को साथ ही सरकार की मदद से इसको खलल पैदा करने के लिए आए हैं।
उनको हम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप ये 10 मजदूर संगठनों के इन्विटेशन पर आए हैं तो 10 मजदूर संगठनों के इन्विटेशन पर खड़े हों, ना कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अलग से इस मीटिंग को डिस्टर्ब करें। ये हमारे को इसका अनुशासन लागू करना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारी मीटिंग को, हमारी ताकत को सरकार किसी भी जरिए से कमजोर करने की बात करती है। अभी आपको सुना, आपने देखा होगा टीवी में, आज हमारे 10 मजदूर संगठनों का किसानों की मदद से पूरे भारत बंद करने की काल है, परंतु कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया हमारा ये प्रोग्राम। मैं टीवी पर देख रहा था, बिहार उन्होंने बंद कर दिया, हमारा एक शब्द नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि हमारे वोटर लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर दी है। नाम किसके हैं कि हम 10 मजदूर संगठनों ने काल दी है। किसान हमारे को मदद कर रहे हैं, परंतु गाड़ियां बंद कर दी है, रोड बंद कर दिए, जो हमारे एजेंडे में नहीं था। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारे देश